Good evening, children. Now today I will teach you in this video about the tables in HTML. In previous video I have discussed list in HTML and different types of list I have discussed with the example like OL, order list, unordered list, nested list, and many activities you have seen in that video. So this is also the part of chapter 3, that is HTML2 for standard 8. So what the things I'm going to discuss in these tables. So what is table or what are tables? So you all are knowing these. What are tables? OpenOffice Calc, Microsoft Excel are few commonly used spreadsheet softwares. You are knowing these softwares provide a grid of rows and column to enter data. We can also draw table in Writer MS Word to represent data or information in a tabular form. So actually what is table? So you can see it's a collection of rows and column, and if you want to store data in rows and column, or you can say if you want to store data in organized way, then you need to use the tables. And simply you can define collection of rows and column called tables. So there is one activity, and in this activity you can see what the things you will learn. What differences did you find in the tables created using Writer and Calc? So this activity you have to do. It's saying what, draw a table with 3 columns and 5 rows in the space given below. Given the heading mobile research to the table, first column will have the names, models of latest mobile phones, second columns will have the specifications, and third column will have the approx cost. A specifications columns can have details like internal memory, front camera, back camera, etc. So this is the activity and you have to do this one. आपको इसको बनाना है and आप सभी बना सकते हैं इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है इसमें. And for presenting data in a tabular manner, we draw rows and columns on a paper. Similarly, we can create table in HTML by using table tag. In short, children, यदि आपको table use करना है to display anything or to display data in tabular form in web page or website, then we have to use table tag or we have to use table. And to use table in a web page and website, we have to use table tag. So what is table tag, children? Table tag allows us to arrange data into rows and column. It is a container tag. Remember, table tag is what? Container tag. And you can see this is a simple example. HTML head, title, closing of title, head, then body, table, closing of table, body, then HTML. So if you want to insert a table in HTML, then you have to use a table tag. And the next one is table caption. Table caption means if you want to give the heading of your table like 8A, 8B, 8C. So you can see here the caption tag is used to display the title of the table on the top. I will show you. And how you can use this one. Remember, children, title यदि टेबल का देना है तो आपको जो कैप्शन टैग के थ्रू यूज करना है, और कैप्शन टैग हमेशा टेबल टैग के बाद यूज होता है. द सेम वे चिल्ड्रन, नेक्स्ट जो टैग यूज होते हैं, देखिए बता दें आपको 5 बेसिक टैग्स जो है यूज होते हैं. नंबर 1 टेबल टैग, नंबर 2 कैप्शन टैग, नंबर 3 TR टैग, नंबर 4 TS टैग, एंड नंबर 5 इज TD टैग. And all 5 tags are container tags. Once again, I'm going to repeat, children. If we want to use tables in web page or website, then we need 5 basic tags. Number 1 is table tag, number 2 is caption tag, number 3 is TR tag, number 4 is TH tag, and number 5 is TD tag. So I have discussed right now टेबल टैग, देन कैप्शन टैग. कैप्शन टैग जो है टेबल का हेडिंग टॉप में देने के लिए. टेबल रो, इफ यू वांट टू डिक्लेयर रो इन अ टेबल, so you have to use TR tag. TR stands for table row. Each row in a table is defined with TR tag. It's again the container tag.
and if it is container tag then we need to close it. The next one is table heading, that is called ts tag. So children, first row जो होता है ना किसी भी टेबल का, उस वो सारे यूज हम लोग th tag के साथ करते हैं. Table heading can be defined using th tag. It is a container tag. It displays the heading in bold letters. I will show you. The next table data, it's called td tag. It's again the container tag, and जो भी टेबल में डेटा होता है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. Okay children, so 5 basic tags you have to use. One hands on is given, so I will show you, but first I'm going to display कैसे यूज करते हैं. So look children, this is the actually the very simple HTML program or HTML code. यहाँ पर जब हम इसको रन करेंगे ना, तो you will not get anything, only you will get what in a title tag one message you will get, means as a tab tables in HTML, and it will not display anything because content यहाँ कुछ है नहीं. So if you want to use table, so I have used table, and after table if you want to use caption, if you want to give heading of the table, so you have to use caption. And what heading you want to give, here you write, suppose a standard 8 I want to give the name of table, so here you have to write a standard 8, and then you need to close caption tag, because caption tag is also a container tag children. And then if you want to insert, देखिए जितना भी आपको रो इंसर्ट करना है उतने टाइम्स आपको क्या यूज करना पड़ेगा, टीआर यूज करना पड़ेगा. सपोज आई वांट टू इंसर्ट ओनली वन रो, सो यू हैव टू यूज टीआर. एंड जब आप रो इंसर्ट करते हैं, सो हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स, सो यू नीड टू यूज फर्स्ट रो जो होता है उसके लिए आपको टीएच. एंड व्हाट हेडिंग यू वांट टू गिव, नेम, मीन्स उसका टेबल का जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, नेम. सो टीएच यू नीड टू क्लोज इन फर्स्ट रो, एक कॉलम हो गया. देन अगेन इफ यू वांट टू डिस्प्ले रोल, देन यू नीड टू क्लोज टीएच. एंड यदि आप 2 ही रखना चाहते हैं, देन इमीडिएट यू हैव टू क्लोज टीएच. देखिए यहाँ पर आप देखिए टेबल इंसर्ट किए, इसका कैप्शन डाल दिया स्टैंडर्ड 8, और इस टेबल में हमारा अभी तक एक ही रो है. कितने रो हैं, एक ही रो है. तो यहाँ पर बिकॉज कैसे कर रहे हैं, बिकॉज एक ही टीआर कर रहे हैं और एक ही टीआर यूज कर रहे हैं, और इस टेबल रो में कितने कॉलम्स हैं, 1 and 2. एंड यदि हम इसको अभी सेव करें या रन करें इसको हम, तो आपको एक टेबल दिखेगा हैविंग 1 row and 2 columns. You can see children here. This is the heading, means caption, and name and all 2 columns, 1 row and 2 columns. But you can see कि sir where is grid lines नहीं है, तो for that one attribute you need to use children, and that attribute is called border. BURDER, border equal to 1, and then you can easily understand the grid line or table. So see, this is the name of the table heading, and 2 columns means first row 2 columns are here. If you want to increase the number of columns, so what you have to do, in first row you need to use th and suppose m number, and then immediately you have to close th tag. Save it children and run it, refresh it, and now you can see एक रो है आपका और कितने कॉलम है. There is only 1 row and 3 columns are name, role and mobile number. Now children, if you want to use another row in that table, so again you need to open tr tag. Again you have to use tr tag for just using the second row, and this time ts you don't have to use. Why? Because ts आपको फर्स्ट रो के लिए यूज करना पड़ेगा. यहाँ पर फर्स्ट रो में हम th यूज कर चुके हैं. So in the place of ts, what you have to use, td you have to use. Okay, so name, suppose name, your name is Amit, so Amit you need to close td children. Then सेकेंड कॉलम में क्या है, रोल चाहिए, तो यू नीड टू यूज td, एंड रोल सपोज रोल इज 2, then you need to close td. Then in second row and third column, what are the things you want to give, td, and address, suppose Patna, then you need to close td. And यदि रो का काम हो गया तो you need to close tr. Save it children. You can see एक टेबल है हमारा, टेबल में बॉर्डर 1 और 0 देते हैं,
और इसमें एक रो है, दो रो है। फर्स्ट रो में कितने कॉलम है? 1 2 3। सेकेंड रो tr मीन सेकेंड टाइम से वी आर यूजिंग, सो सेकेंड रो में कितने कॉलम? 1 2 3। Save it children, Ctrl+S you can use, or from file you can save this one and run it, and you will be able to understand the concept. See, two rows and columns 1 2 3. So in this way you can use table to just organize data in tabular form or rows and column. Now one thing children, if you're using 0 in the place of 1 in border attribute, so you can see here what the result will come. See, so children, 0 means no border and 1 means border. And now एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा आपको कि सर यदि हम 5 देंगे तो क्या होगा? 5 यानी बॉर्डर का ये स्टाइल है, थिकनेस आपको दिखेगा। सेव इट एंड नाउ सी रिजल्ट। थिकनेस आप जैसा चाहेंगे। सो नाउ जस्ट आप देखेंगे यहाँ पर एक एक्टिविटी है एंड दो टेबल दिया हुआ है, टेबल 1 एंड टेबल 2, एंड सम क्वेश्चंस आर हियर चिल्ड्रन। तो आप टेबल 1 में देख रहे हैं कि नो बॉर्डर। इस टेबल में कोई बॉर्डर है क्या? ग्रिड लाइन है क्या? नो, नहीं है ना। एंड सेकेंड टेबल में देखेंगे आप क्या है? बॉर्डर है, मतलब ग्रिड लाइन यूज किया जा रहा है। दूसरे में इसका बैकग्राउंड है। तो ये डिफरेंसेस आपको लिखना है। नेक्स्ट जो टेबल देखेंगे टेबल 3, इसमें देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, बैकग्राउंड में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं एंड बॉर्डर भी हैं इसमें। तो क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे चिल्ड्रन, राइट एज मेनी डिफरेंसेस एज यू कैन स्पॉट बिटवीन टेबल 1 एंड टेबल 2। क्या डिफरेंसेस लग रहा है? तो उसमें नो ग्रिड लाइन्स है, इसमें ग्रिड लाइन्स हैं टेबल 1 में, टेबल 2 में बैकग्राउंड उसमें नहीं है, इसमें बैकग्राउंड है। तो आप देख कर समझ सकते हैं और इसका आंसर लिखेंगे चिल्ड्रन आप। नेक्स्ट यदि बात करें, ऑल्सो राइट द डिफरेंसेस बिटवीन टेबल 2 एंड टेबल 3। टेबल 2 और टेबल 3 में क्या डिफरेंसेस है? टेबल 2 में बैकग्राउंड है, ग्रिड लाइन भी है, बट इंडिविजुअल जो सेल्स है उसका कलर जो है उसका बैकग्राउंड है अलग है, बट सॉरी टेबल 3 में अलग है बट उसमें ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आप देख के कर सकते हैं। विच टेबल यू फील इज द बेस्ट इन द अपीयरेंस? सो ऑब्वियसली टेबल नंबर 3। Now one question is there, make a list of the various formatting features you have used in Writer, MS Word and Calc, MS Excel with the help of your partner। तो हम लोग टेबल में क्या करते हैं? टेबल का बॉर्डर सेट करते हैं, टेबल का बैकग्राउंड सेट करते हैं, सेल का बैकग्राउंड सेट करते हैं। तो सारी चीज़ आपको डिस्कस करना है और आप लिखेंगे इसमें। Now this is a very very important children, attributes of table tag। attributes of table tag, attributes का काम क्या होता है? आप लोग पिज़्ज़ा खाते हो, पिज़्ज़ा में एड ऑन का फीचर होता है, एक बेसिक होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा लेना होता है तो यू नीड टू ऐड ऑन। तो सेम वे एट्रीब्यूट्स मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? जस्ट ऐड एडिशनल फीचर्स विद द टैग, ऐड एडिशनल फीचर्स विद द टैग एंड यू कैन सी चिल्ड्रन बॉर्डर आई हैव यूज 0 1 आई हैव यूज 0 मीन्स नो बॉर्डर, 1 मीन्स बॉर्डर, एंड उसके बाद 2 3 4 जो भी डालेंगे वो दैट इज अ थिकनेस ऑफ द बॉर्डर। नाउ बीजी कलर, व्हाट इज द बीजी कलर एट्रीब्यूट? सो आई एम गोइंग टू यूज दिस बीजी कलर एट्रीब्यूट इन टेबल। इफ यू आर यूजिंग बीजी कलर मीन्स चिल्ड्रन set any color as the background of table. So if I'm using a red, so you can see children, save it and run it, you can see the table का जो background है, table का जो background है, this is what color red की है। बट इसके पहले भी हम बात किए हुए बॉडी के साथ यदि आप यूज करते हैं बीजी कलर, बीजी कलर इक्वल टू व्हाट? पिंक। तो अब ये देखेंगे पूरा जो वेब पेज होगा हमारा उसका कलर क्या होगा? पिंक होगा, और जो आपका टेबल का था वह रेड होगा। तो कर सकते हैं चिल्ड्रन। उसी प्रकार से आप इसमें एक और एट्रीब्यूट है चिल्ड्रन, इन द प्लेस ऑफ बीजी कलर, इट्स नॉट गिवन योर बुक बट इन द प्लेस ऑफ बीजी कलर इफ यू यूजिंग बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड में यहाँ पर आप कोई पिक्चर लेते हैं। पिक्चर कैसे लेते हैं चिल्ड्रन वो देखने की जरूरत है। नाउ देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मेरे डेस्कटॉप पे कोई पिक्चर्स है, यस एक पिक्चर्स यहाँ दिख रहा है चिल्ड्रन। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक जाएंगे, जो भी पिक्चर आपको करना है गो टू प्रॉपर्टीज़, एंड प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप सिक्योरिटी में चले जाएं, और सिक्योरिटी में जाने के बाद ऑब्जेक्ट नेम दिख रहा होगा आपको, यहाँ से पूरे इसको आप क्या करें राइट क्लिक करके आप कॉपी कर लें।
एंड आप अपने नोटपैड फाइल में आ जाइए और नोटपैड फाइल में आकर आप राइट क्लिक करके कंट्रोल भी दबा दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। देखिए बच्चे, अभी बैकग्राउंड उसके पहले बीजी यूज कर रहे थे तो कलर हमारा रेड था। अब हमारा देखेंगे यहाँ पर मैंने पिक्चर को किया है तो वो पिक्चर हमारा जो है, देखिए पिक्चर जो है हमारा बैकग्राउंड में सेट हो गया है। तो इफ़ यू वांट टू सेट any picture as the background of your table, so you have to use background attribute, and if you want to use any color as the background of table, then you need to use bg color attribute. Question, if any question will come, so what is the difference between bg color attribute and background color attribute in the term of tables? So here you have to give what bg color to set any color as the background of table, but background attribute is used to set any picture as background of your table. So now moving to the next part, children. नेक्स्ट एट्रीब्यूट, लिसन, बीजी कलर एट्रीब्यूट हम बता दिए आपको, बॉर्डर बता दिए, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। व्हाट इज सेल पैडिंग? लिसन, स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल कंटेंट। तो अभी आपको जो ना पहले करके दिखाते तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो कहाँ यूज करेंगे हम? ये हमारा एट्रीब्यूट है टेबल का, तो हम टेबल के अंदर यूज करेंगे सेल पैडिंग। Okay children, and if we will give self padding equal to 20, save it and then आप वापस आप आइए। आप देखिए यहाँ, अभी देखिए इसमें आपको, अब देखिए यहाँ पर एक अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द वॉल ऑफ द सेल। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो वो स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक यहाँ है, सब एक बराबर जो है वो 5 का डिस्टेंस पे ले लिया। फिर से देखिए, यदि हम यहाँ पर 5 के स्थान पर 20 के स्थान पर यदि 10 करेंगे तो वह 10 का दिखेगा। क्या दिखेगा? 10 का। देखिए यहाँ अभी थोड़ा छोटा हो जाएगा। कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो अमाउंट ऑफ स्पेस जो आपका वॉल का है, कंटेंट का है, उसको देने के लिए है। ओके चिल्ड्रन, एंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट जो है, यदि हम बात करें, एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, वह है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग, और यदि हम यहाँ पर 30 दे दें चिल्ड्रन, तो सेल, अभी देखिए यहाँ सेल आपस में क्या है? क्लोज है। अब जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो सेल के बीच में स्पेस आ जाएगा चिल्ड्रन। देखिए ये जो एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल के बीच में जो अमाउंट ऑफ स्पेस है, एक कंटेंट और वॉल के बीच में स्पेस है, दैट इज ड्यू टू सेल पैडिंग, एंड सेल के बीच में जो स्पेस है ड्यू टू दिस सेल स्पेसिंग चिल्ड्रन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। Now moving to the next one, height and width. I think no need to explain children. height and width जो है करने के लिए, height and width आप डाल देंगे टेबल का तो height and width भी निकल जाएगा। चलिए अभी हम डाल देते हैं इसमें आपका, एंड height and width जो है height इक्वल टू 50 डाल देते हैं चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा। थोड़ा हाइट कम हो जाएगा यदि हम यहाँ पर चिल्ड्रन हाइट को थोड़ा 500 कर देंगे तो आपको समझ में आएगा चिल्ड्रन। और देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं हाइट चिल्ड्रन। उसी प्रकार से आप विड्थ है, नेक्स्ट है आपका विड्थ भी आप कर सकते हैं ऐसा। विड्थ इक्वल टू, यदि हम 500 दे देंगे तो वह विड्थ भी आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ चिल्ड्रन, तो हाइट एंड विड्थ आपको समझ में आ रहा होगा, हाइट एंड विड्थ आपको समझ में आ रहा होगा। सो आपके जो बुक में जितने भी एट्रीब्यूट्स दिए हैं, आप उससे आपका यहाँ पर सारा बीजी कलर, बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, हाइट, विड्थ और इस सारे एग्जाम्पल चिल्ड्रन आप देखेंगे इसका जो है हैंड्स ऑन दिया हुआ है, जिससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। सबका अलग अलग बीजी कलर एट्रीब्यूट्स का यूज दिया हुआ है। सेट आप देख सकते हैं बीजी कलर एट्रीब्यूट्स, वी कैन सेट बैकग्राउंड कलर फॉर होल टेबल और जस्ट वन सेल यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। तो वी कैन यूज दिस थिंग, इसके बारे में भी आपको यहाँ दिया हुआ है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है, ये हैंड्स ऑन है, हैंड्स ऑन आप करेंगे तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट जो चिल्ड्रन यहाँ पर one activity is given, name the software used by you which allow you to change the row height and row column। तो यहाँ पर चिल्ड्रन ध्यान रहे, यहाँ पर रो स्पैन एंड कॉल स्पैन यहाँ आ जाएगा। रो स्पैन एंड कॉल स्पैन के थ्रू आप लोग
हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, मर्ज करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, नेम द सॉफ्टवेयर यूज बाय यूज अलाउ यू टू चेंज द रो हाइट। नो, रो हाइट एंड कॉलम हाइट तो आपका यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ओपन ऑफिस राइटर है, एक नाम दे सकते हैं जिसका रो हाइट और कॉलम हाइट हम लोग चेंज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। असेसमेंट एक्टिविटीज़ गिवन चिल्ड्रेन, मैंने शायद क्लास में कराया है, आप इसको करेंगे, आसान है, आसानी से कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3 HTML2, and I think after watching this video now you people will be able to understand all the concept about this list and tables. So if you have any query या query कुछ होगा, कोई भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम होगा चिल्ड्रेन, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम HTML पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। सो तब तक वेट करें और चैप्टर 3 को अच्छे ढंग से कर ले। कोई भी क्वेरी होगा यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। सो थैंक यू वेरी मच।